ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਔਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ।
ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਈ, ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਆਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸੰਕੁਚਣਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਭਾਵ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਮਾਂ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ।
कई घरां दा जिहड़ा विकास वो मां नाल ही हुंदा है। घर का सारा ही विकास उत्थे ही रुक जाता है जदों मां दे सवास रुक जाण। धी नूं सब तो वध और पुੱਤ नूं सब तो वध दुख मां दी जाण दा हुंदा है। दुख दूजिਆਂ नूं भी थोड़ा घट हुंदा है, किसी नूं दुख बहुत है, किसी नूं थोड़ा है। हुण इसे तरह दुख तां हुंदा है, रोण तां आउंदा है। इस रोण नूं रोकिया नहीं जा सकता। इस रोण नूं रोकांगे भी ते ये रोना अंदर बीमारी बन जाता है। पर गुरु अमरदास महाराज अपने परिवार नूं कहंदे ने असी शरीर छड्ड देना है, पर तुहानूं हुक्म है तुसी किसी ने रोना नहीं। जे तुसी साडे शरीर छड्डण तो बाद रोए तो सानूं कदाचित बिल्कुल मूलों ही चंगा नहीं लगेगा। सतगुर भाणा अपना बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। हुण बाबा मोहरी जी हथ जोड़ के गुरु अमरदास महाराज जियां दे सन्मुख होए, कहन लगे गुरु पिता जी सारी दुनिया च ये एक मर्यादा बन गई कि जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता है उहदे जाण तो पिछों पिट स्यापा किया जाता है, उहदे जाण तो पिछों रोया जाता है, विरलाप किया जाता है। तो महाराज जे असीं रोना नहीं, एक चीज़ छड्डीए तो उहदे वास्ते कोई दूजा भी तो टॉपिक चाहिए है। महाराज फिर जे नहीं रोना तो दूजा की काम, फिर होर की करना चाहिए सन। उस वेले गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने वड्डे पुत बाबा मोहरी जी की गल सुन करके आखिया, महाराज जी कहंदे मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदया हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। गुरु अमरदास महाराज कहते तुहानू ये हुक्म है कि रोना नहीं, साडे जान तो पिछों एक तां कीर्तन करियो जी, जे कीर्तन नहीं तो कथा करिया जी, भावें कीर्तन कथा दोवें ही करिया जी। कथा करियो जां कीर्तन करियो जां कथा कीर्तन दोवें ही करियो जी, ये हुक्म है। उस वेले गुरु अमरदास महाराज जी ने सारे परिवार को यह हुक्म सुना दिता। हुण ये मता जाणियो कि महाराज ने किसी पंडित की गल की है कि उस पंडित की गल की है, उस पंडित नूं सदियो जे जिहदे धोती बन्नी होवे ते सिर ते बोधी रखी होवे। इस इत्थे उस पंडित की बात पातशाह ने नहीं की जिहदे धोती बन्नी ते सिर ते बोधी रखी है। पंडित कौन है? सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज सुखमणी सिंह जी की बाणी विच किरपा करदे आ। महाराज कहंदे सो पंडित जो मन पर बुध राम नाम आत्म में सुध। महाराज कहंदे जिस बंदे दे कोले ज्ञान होवे, जिस बंदे दे कोले समझ होवे, जिन्हें अपने मन नूं शुद्ध कर लिया, जिन्हें राम नाम जपिया है, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है, जिन्हें अपनी आत्मा नूं राम दे नाम नाल सोधा ला दिता, भाव आत्मा ही मांज दिती। आत्मा ही जिस बंदे ने निर्मल कर लई उस बंदे नूं कहंदे ने पंडित। पातशाह कहंदे कोई पंडित सदियो जी।
पंडित की करे, केसो गोपाल पंडित सदियो। हुण केसो भी किसी खास बंदे का नाम नहीं है। केसो उहनूं कहिंदे जिहड़ा पूरा होवे। अज भी किसी बंदे दे सिर ते केस होण, मुख ते दाड़ा होवे ते असीं कहने ये केसो है, ये पूरा है। इहनूं जिवें परमात्मा ने संसार ते भेजिया सी ये उवें दा ही है। इन्हें उस वाहिगुरू की कुदरत के नाल छेड़छाड़ नहीं की। उस मालिक ने जिहो जिहा शरीर दिता सी इन्हें उहो जिहा शरीर साँभ के रखिया। केसो नाम परमात्मा दा है। भगत कबीर सिंह जी इस गल नूं थोड़ा क्लीयर करते ने। भगत कबीर जी कहंदे कबीर केसो केसो कुकीऐ ना सोइए आसार। रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। भगत कबीर जी कहंदे बंदिया रोज दिन रात केसो 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 जपी चल। ते एक दिन वो केसो ये किसी बंदे का या पंडित का नाम नहीं, केसो परमात्मा का नाम। भगत कबीर जी कहंदे एक दिन उस केसो ने तेरी पुकार, उस परमात्मा ने तेरी पुकार सुन लेनी है। कबीर केसो केसो कूकी है ना सोइए आसार। रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। किते ना किते तो तेरी पुकार वो मालिक सुनेगा ना। केसो नाम परमात्मा का। अगे आखिए गुरु अमरदास महाराज कहंदे गोपाल केसो गोपाल पंडित सदियो। ये बाबा सुंदर जी लिखते हैं भी बाबा सुंदर जी की बाणी। गुरु अमरदास महाराज कहंदे केसो गोपाल पंडित सदियो। फिर गोपाल भी किसी पंडित का नाम नहीं। गुरु साहिब जी दे विच गोपाल नाम भी परमात्मा का, ये उस वाहिगुरू का गुणवाचक नाम है। गो कहंदे धरती नूं, पाल कहंदे जिहड़ा धरती दे सारे जीवां नूं पालदा होवे। गो प्लस पाल बन गया परमात्मा गोपाल। सारी धरती दे जीवां नूं पालण वाला गोपाल। ते भगत धन्ना जी ने आखिया गोपाल तेरा यारता जो जन तुम्हारी भगत करांते तिनके काज सवारता। गोपाल नाम परमात्मा का है। गुरु अमरदास महाराज कहंदे जदों असी शरीर छड्ड दिता, शरीर संकुचिया ना, ते उस वेले कीर्तन करियो जे जां कोई पंडित विद्वान सद के गुरबाणी की कथा करिया जे। हर हर कथा पढ़ है पुराण जियो। साडे धर्म दे विच गरड़ पुराण की कथा वास्ते जगह नहीं है। गुरमत इस गल नूं नहीं मनदी कि जदों कोई पुरानी चढ़ाई करे तो ओदी गरड़ पुराण की कथा होवे भुगते। पर पातशाह ने आखिया सिख वास्ते हर हर की कथा ही गरड़ पुराण है। रब की कथा ही साडे वास्ते पुराण की कथा है। इस करके वो सतगुरु पातशाह महाराज जी का हुक्म मानते हुए परिवार ने भी ये समागम उलीकिया कथा कीर्तन का। जिमें आप हुण जुड़ बैठे हैं। माता बलविंदर कौर जी नूं श्रद्धांजलियां देण वास्ते उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होण वास्ते असीं जुड़ बैठे आए हैं। तो जरूर सीध लेके जानी, कुछ ना कुछ असीं इत्थों सीख के जाना है। जे इत्थे आए हैं तो अपनी मौत नूं जरूर चेते करियो, नहीं सानूं दुनिया की हर गल चेते हुंदी है, इक्को गल साडे चेते विच नहीं आउंदी। सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव कृपा करते ने। महाराज कहते बंदे नूं हर चीज़ चेते, खाना इनू चेते, पीना इनू चेते, खुशी आ जाए तो हसना ये नहीं भुलदा, भंगड़े पाउणे भुलदा किते।
सब कुछ चेते आ, नींद इनू चेते चा भी आ टाइम ते सौ जाना है, इन्ने बजे दिने सौना, इन्ने बजे रात नूं सौना है। दुनिया की हर चीज़ ये अपने चेते विच रखदा है, एक चीज़ चेते नहीं रखदा। महाराज कहंदे ओ चेते कर लवें ते तेरा भला हो जाए। किहड़ी चीज़ है महाराज? सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे खाना पीना हसना सौना। खाना चेते आ, पीना चेते आ, हसना चेते आ, कहंदे नींद भी सौना भी चेते आ। फिर की भुलिया? खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। बंदिया तेनू मौत चेते नहीं। जिस दिन तेनू मौत चेते आ गई तो उस दिन मौत तेनू दुखी नहीं करेगी। मौत आउंदी सारियां ते आ, पर किसी नू बड़ा दुखी कर दी है, किसी नू ये बड़े सन्मान नाल लेके जाती है। एक गल ध्यान नाल सुनियो जे, कई बार असी सोचते हैं भी किसी बंदे नू अटैक आ गया, प्राण निकल गए, श्वास पूरे हो गए, शरीर ढिड हो गया। आम गल्लां कीतियां जांदियां भी जिहड़ी अटैक वाली मौत है ये मौत बड़ी वधिया है, बंदे नू दुखी नहीं करदी है। वो बंदा दुखी होया कि नहीं होया ये तो असी एक अनुभव कर लिया। ये तो वो बंदा दोबारा मुड़ के फिर संसार ते आवे ते दसे मैं किन्ना औखा होया है। जदों मौत रूपी लाड़ा जिंद रूपी वहुटी नूं विआउण वास्ते आउंदा ना, सतगुरु पातशाह ने बाणी च साडी जिंद नूं वहुटी आखिया ते मौत नूं लाड़ा आखिया वर। जिंद वहुटी मरण वर लै जासी परनाए, आपन हथी जोड़ के कै गल लगे ताए। जदों वो मौत रूपी लाड़ा आउंदा जिंद नूं लेके जांदा है, ये जिंद सौखी शरीर विचों निकलदी नहीं। महाराज कहंदे जिंद निमाणी कढी है हड्डां कू कड़काए। महाराज कहंदे तो शरीर दे सारे हड्डां नूं तोड़ तोड़ के चूर करके ना फिर मौत जिंद नूं लेके जाती है, सौखी नहीं आउंदी। हाँ, जिन्हों अटैक होया वो दुनिया ते दोबारा आवे ते दसे, ना कोई दोबारा आया ते ना कोई दस सकिया। ये एक साडा अंदाजा है, असी अनुभव कर लेंदे हैं कि इहदे ते मौत बड़ी वधिया, सौखी मौत मर गया है, पर सौखी नहीं। जे अपने नज़रिए ना वेखना होवे ना ते फिर भाई तारू सिंह, इहदा मतलब वो बड़े दुखी हो के शहीद होए होणगे, क्योंकि उन्होंने अटैक नहीं, उन्होंने तो आरे दे हेठां वाहिगुरू, उन्होंने तो रंबी दे हेठां खिलारिया, सीस ते रंबी चलदी रही, जलादा ने हौली हौली रंबी दे नाल खोपर उतारिया। कितना वड्डा दुख होएगा। पर ये मौत आनंद वाली है, क्योंकि शरीर का मोह नहीं, वो बाणी नाल जुड़े सी, वो नाम नाल जुड़े सी। मत आखिया करो अटैक वाली मौत जिहड़ी है सौखी है, इहदा मतलब तो फिर भाई मती दास जी वो तो आरे दे हेठां खड़े बड़े दुखी होए होणगे, पर वो दुखी नहीं होए, सीस ते आरा चलदा सी फिर भी बाणी पढ़दे सी, वो आनंद विच सी। जिहड़ा आनंद उन्हां दे कोल पहिलां सी, सीस ते आरा चलण नाल भी उहो ही आनंद रहा, आनंद विच कोई फर्क नहीं पिया। भाई दयाला जी, भाई सती दास, भाई मती दास, उन्हां दे जीवन वल वेखियो जी। भावें सीस ते आरा चलिया, भावें रूम विच लपेट के अगलियां ने अग ला के साड़ दिता, भावें उबलदी दीग च उबालिया, वो मौत सौखी है। क्योंकि वो मौत सौखी इस करके आ, परमात्मा का नाम चेते आ, रब चेते आ।
गुरु अमरदास महाराज भी इहो ही गल कहिंदे, भगत कबीर साहिब जी भी सेम उही गल कहिंदे, क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए। सतगुरु पातशाह महाराज कहिंदे सानू ये तां नहीं पता मरना किवें आ, कदों मरना, कित्थे मौत होनी है, इस गल का इल्म नहीं, बंदे नूं इस गल का पता नहीं। कई बार बंदा सोचा होर सोचदा है भी कल नूं आ करना है, ते कल तां दूर ओहदी तां शाम नहीं आउंदी अज वाली। रात नूं बंदा बहुत कुछ सोच के पैंदा है भी सवेरे आ काम करने आ, फलानी फलानी जगह ते जाना है, कल नूं फलाने पैलस च जाना है, खेत च फलाना काम करना है। बंदा बहुत कुछ सोच के रात नूं सौंदा है, पर कई बार सवेरे उठदा ही नहीं। महाराज कहते हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत न जाना। सानू मौत वाला दिन जिहड़ा वो परमात्मा ने नहीं दसिया, भावें असी अपने जन्म तो भी पहला मौत वाला दिन लिखा के फिर इस संसार ते आए हैं। महाराज कहते अनक जतन कर काल सुलताए, मरण लिखाए मंडल में आए। मौत वाला दिन जिहड़ा साहा ये लिखिया गया, इनू कोई बदल नहीं सकता। जिहड़ा धुर तो असी जन्म तो भी पहला परमात्मा के कोले मौत वाला दिन लिखा दिता ना, साडा मौत का दिन जिहड़ा नियत किया गया, इनू कोई बदल नहीं सकता। रत्ता पार ना वध ना घट कोई नहीं कर सकता। किसी बंदे दे कोले कोई ताकत नहीं कि कोई बंदा किसी की उम्र वधा देवे। मत कोई जानो किसी के किश हाथ है, सब करे कराया मता जाने। वो परमात्मा आप ही सब कुछ करता है। हाँ, उस परमात्मा की मर्जी होवे तो वो एक मुर्दे च भी जान पा सकता है, ओदी मर्जी होवे तो नहीं तो महाराज कहते साहे लिखे न चलनी, जिंदू कू समझाए। भलिया तू अपनी जिंद नूं समझा लै भी मौत नाल जाना पैना, तेरा मौत नाल विआह हो जाना है। जिहड़ा साहा लिखिया गया ना, साहा किहनूं कहिंदे भला, जदों किसी का विआह रखदे हैं, गल मौत की पातशाह ने उदाहरण विआह की दित्ती। जदों किसी का विआह बन्निया जाए किसी धी का, तो उदों फिर एक साहे चिट्ठी लिखी जाती है। उस साहे चिट्ठी तो पहला विआह वाला जिहड़ा दिन आ उहनूं अगे पिछे कीता जा सकता है, वधाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, दिन बदलिया जा सकता है। पर जदों साहे चिट्ठी लिखी जाती है उस तो बाद विआह का दिन पक्का, फिर नहीं कोई बदल सकता। कहते हुण साहे चिट्ठी लिखी गई, हुण विआह का दिन नहीं बदलिया जाना। इस करके ये जिहड़ा साहा साडी भी चिट्ठी लिखी गई है जिहड़ी मौत वाली, इनू कोई वधा और घटा नहीं सकता। ये तो परमात्मा ने पक्का जिहड़ा लिख के भेजता बस। इस करके ये मौत सारियां ते आउणी है, इन्हें बख्शना किसी नूं नहीं। किसी ते पहला आ जाती है, किसी ते बाद विच, क्योंकि उस परमात्मा की खेती है जी। जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाढ़ पुरानी, बंदा जानदा मैं मरना ही नहीं, पर परमात्मा की खेती आ, वो कच्ची भी वढ़ सकता है, पक्की भी वढ़ सकता है, वो जवानी च ले जाए, अध खड़ उम्र च ले जाए, उसकी मर्जी है। पर पातशाह कहते ने क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए। बंदे नूं नहीं पता कदों मरना, कित्थे मरना, किवें मौत होनी है। हजे बंदे नूं अपने जन्म का, माफ़ करियो, उहदे मापियां नूं उहदे जन्म का पता हुंदा है भी फलाने महीने बच्चे का जन्म होना है, साडे घरे नवा जीव आउणा है, वो तो पता है। वो तो डॉक्टर 9 महीने पहला दस दिंदे आ जन्म वाला दिन तां, पर जिहड़ा मौत वाला दिन आ इनू तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं दस सकता। किसी विग्यानी ने नहीं खोज की भी वो दस देवे भी इहदी इन्नी तरीक नूं मौत
नहीं दसिया जाता, ना कोई डॉक्टर दस सके भी इहदी मौत किदन होनी है। इहो जी कोई मशीन नहीं बनी जिहड़ी दस देवे कि मौत कदों होनी है। कोई अल्ट्रासाउंड नहीं इहो जी। इस करके मौत सारियां ते आउणी है। महाराज कहंदे क्या जाना कि मरहेंगे, कैसा मरना होए। अगे पता की आंदे महाराज कहंदे मैनू एक गल दा पता है। महाराज वो किहड़ी गल? कहंदे जे कर साहिब मन हो ना विसरै तां सहला मरना होए। महाराज कहंदे जे किते मालक तैनू भुले ना रब दी याद ना भुल जाए किते तैनू, ते तैनू मौत तां आवेगी पर दुखी नहीं करेगी। तैनू सन्मान नाल मौत तेरी जिंद नू लेके जाएगी, सन्मान नाल। ये एक प्रैक्टिकल जी उदाहरण भी असीं वेहने हुन्ने हां आम संसार ते भगत कबीर सिंह जी ने सानू बाणी च भी दस्सिया है। कहंदे एक बिल्ली है, उन्हें 5-4 बच्चे दिते। बिल्ली ने 5-4 बच्चे दिते ते ओ बिल्ली अपने बच्चों की हिफाजत वास्ते ना, बिल्ली नूं ये डर है अंदर कि जे किते मेरे बच्चे एक जगह ते रहे, कोई शिकारी आएगा मेरे बच्चों नूं लै जाएगा, मेरे बच्चे मार देवेगा। इसे डर करके बिल्ली ने अपने बच्चों नूं एक घर तो दूजे घर, उत्थे बहुता चिर नहीं 1-2 दिन रख के दूजे घर तो बिल्ली अपने बच्चों नूं तीजे घर ले जाती। उत्थे भी बहुता चिर नहीं, हर घर विच बिल्ली अपने बच्चों नूं 1-2-3 दिन रखती है, इस तो वध नहीं। और फिर घर बदलती रहिंदी है, अपने बच्चों का टिकाणा बदलती रहिंदी है। तो वो बिल्ली जदों अपने बच्चों नूं लेके जाती है ना, वो भला लेके किवें जाती है? वो अपने बच्चे नूं मूँह नाल फड़दी है, मूँह दे नाल अपने बच्चे की गर्दन फड़ी ते एक थां तो दूजी थां ते लै जाती है। तो गुरमुखो किते उसी बिल्ली दे मूँह विच चूहा आ जाए, जदों बच्चा चुकिया ना उदों मूँह उही है, दंद उही है, पर बच्चे नूं दंद लगन नहीं दिंदी, प्यार है। उसे ही बिल्ली दे मूँह विच चूहा आ जाए तो साडे सामने मलिया मेट कर दिंदी है, हाल छड्डदी है कोई। इस तरह ये मौत एक बिल्ली है, मौत सारियां ते आउणी है, पर जिहड़ा बंदा रब दी बंदगी करदा है, जिहड़ा बंदा नाम जपदा है, उस बंदे ते भी मौत आउणी है, पर मौत उहनूं दुखी नहीं कर सकेगी, उहनूं सन्मान नाल लेके जाएगी। भगत कबीर सिंह जी कृपा करदे कहंदे ऐसो इहो संसार पेखना रहन न को पई हरे। भगत कबीर जी कहंदे संसार दे विच ये वेखिया है, ऐसो इहो संसार वेखना रहन ना को पई है रे। जिहड़ा भी इस संसार ते आया वो एक दिन चलिया गया, इस दुनिया ते कोई नहीं रहिंदा। राणा राओ ना को रह, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर। सतगुरु पातशाह कहते कोई भी धीरज बन के इस दुनिया ते नहीं रहिंदा, जिहड़ा आया उहनूं जाना पैंदा। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, वारी सारियां दी आउंदी है। ये सुनेहा घर घर आउंदा है, सारियां नूं सुनेहा आउंदा है मौत दा। भगत जी कहंदे ऐसो इहो संसार पेखना रहन न को पई है रे। फिर सानू उपदेश बख्शदे, कहंदे
सुदे सुदे रेग चलो तुम। हे जीव, ਜਦੋਂ इस संसार तो जाना ही है तो फिर तैयारी कर लै, मौत की तैयारी कर लै। क्योंकि जिस धी का विआह होंदा ना, नभ करियो जी, हर एक बाप नूं अपनी धी विआहणी पैंदी है। ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਆ, ਹਜੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, फिर उहदे लीड़े लत्ते सारी जिहड़ा दाज देना हुंदा वो सारा प्रबंध शुरू तो ही करन लग जाते ने। ते बंदिया जाना तू भी है, तेरी भी जिंद ने मौत नाल जाना है, एक दिन विआह तेरा भी होना मौत नाल। मता सोची भी साडी सत्कारयोग माता बलविंदर कौर चले गए, जाना सानू भी पैना है। उन्हां दी मौत वल वेख के अपनी मौत नूं चेते करी, लाड़े ने वर ने तेरी जिंद नूं भी विआह के लेके जाना है। ये सारियां ते आउंदी है। इस करके भगत कबीर जी कहंदे सूधे सूधे रेग चलो तुम। रेग कहंदे रास्ते नूं। भगत कबीर जी कहंदे एवें वल विंग ना पाउंदा फिर इधर उधर भटकना। जिहड़ा रास्ता गुरु साहिब जी दसदे ने, किहड़ा रास्ता है? वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जिहड़ा इस वाहिगुरु नाम रूपी जहाज ते चढ़ जाता है वो फिर पार लंघदा है, वो विच विचाले डुबदा नहीं है। इस करके चंगे चंगे दुनिया ते विचरदियां चंगे चंगे काम करिया कर, सदा सच बोलिया कर, ईमानदारी रखिया कर, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, नतर को धक्का दवई है रे। जे किते तेरी पहला तैयारी होएगी, मौत नूं चेते रखिया होवे ना, ते मौत आएगी, दुखी नहीं होएगा। ते नहीं तां जे ना चेते होया ते मौत ने इहो जिहा धक्का मारना, झलिया नहीं जाना तेरे कोलों। किसे कोई बंदा अचनचेत खड़ा होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਧੱਕਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, पर पहला सुचेत रही। कहते सुचेत रहिए, पिछों कोई धक्का दे देवे तो संभल जाइदा है। अचनचेत धक्का वाजे साडे जाल चेते ना होवे। ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन तो सिद्धां लईए किन्नी तैयारी होएगी पातशाह की। एवें नहीं पातशाह ने जदों जवान पुत अनेक ही फट खा के शहीद होंदे ने, ते चमकौर की गढ़ी के उत्ते खड़ के एवें ही नहीं जकारे छड़े। मेरे पातशाह की किड्डी वड्डी तैयारी होएगी, तैयारी सी। नाले पातशाह नूं पता है कि छोटियां दा भी सुनेहा आउण वाला है, शहीद उन्हां भी हो जाना है। ਐਵੇਂ नहीं हथी तोरता सी अपने बाप नूं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी 9 साल की उम्र सी उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की, जदों बाप नूं दिल्ली भेजता सी शहीद होने वास्ते, ते नाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पता सी कि मेरे बाप नूं मैं तोरन तां लग्या,
इन्हां ने मुड़ के आउणा नहीं, पता सी, हथी तोरिया। बाबा अजीत सिंह नूं हथी तोरिया, बाबा जुझार सिंह नूं हथी तोरिया। इसी तैयारी पातशाह दी। भगत कबीर जी कहते इहो ऐसो इहो संसार पेखन रहन न को पई है रे, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को धक्का दवई है रे। इस धक्के ने नहीं वेखना भी तेरी उम्र कितनी है। ये तो जिहड़ी पहला लिखी गई मालिक दे घर मरण लिखाए मंडल में आए, जिहड़ा पहला दिन लिखिया गया वो लिखिया उहो ही चलना है। इस मौत ने धक्का मार लगिया नहीं वेखना तेरी उम्र कितनी है। भगत जी कहते बारे बूढ़े, बारे कहते बालक नूं ये मौत बच्चियां ते भी आ जाती है। बारे बूढ़े, बुढ़े कहते जिहदे ते बुढ़ेपा होवे, जिन्हें सारी उम्र लंघा लई। बारे बूढ़े तरने भैया, तरने कहते ने जवान, मौत जवान ते भी आ जाती है। बारे बूढ़े तरने भैया सबहू जम लै जई है रे, जम ने सबना नूं लै जाना है। नहीं वेखना कि बालक है, नहीं वेखना जवान है कि बुजुर्ग है, मौत ने नहीं वेखना। बारे बूढ़े तरने भैया सबहू जम लै जई है रे, मानस बपरा मूसा कीनो, जिहड़ा नाम नहीं जपदा, बंदगी नहीं करता, बाणी नहीं पढ़ता, जिन्हें किते सीधा रस्ता चुनिया ही नहीं, जिहड़ा पग डंडियां च उलझदा रहा। भगत जी कहते ये जीव मनुख विचारा चूहा है। मानस बपरा, बपरा कहते विचारे, मानस बपरा मूसा कीनो, मूसा पाव चूहा, मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बलैया खई है रे। ते बिल्ली ने आन के, मौत रूपी बिल्ली ने आके तेनू पकड़ लेना ते फिर मड़िया मेट कर देना है। मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बलैया खई है रे। इस करके जे मौत रूपी बिल्ली दे नाल सन्मान नाल जाना है ते फिर पहला तैयारी कर, बंदगी कर ले। जे तेरी तैयारी होएगी तो इस मौत ने तैनू बिल्कुल दुखी नहीं करना। ये मौत तैनू दुखी नहीं कर सकेगी। नहीं संसार ते जेड़ा भी आया है, इत्थे वड्डे वड्डे औलीए आए, फकीर आए, सारे इत्थों रोंदे ही गए ने। नहीं रोंदा ते एक परमात्मा नहीं रोंदा, ते परमात्मा दा रूप गुरु नहीं रोया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिंदगी विच रोए नहीं। कहंदे ने साडे कोलों पातशाह ने कुछ नहीं लुकोया, सब कुछ साडे तो निशावर कर दिता, सारा कुछ साडे तो वार दिता। महाराज ने अपने महल माड़ियां आनंदां दियां पुरियां साडे तो वारियां। सतगुरु पातशाह ने बड़े बड़े किले बनाए सी, वो भी त्याग दिते। पातशाह ने सारा खजाना नदियां च रोड़ दिता। गुरु पातशाह महाराज जी ने 4 पुत साडे तो वार दिते। मां साडे तो वारी, पिता साडे तो वारिया। साडे कोलों की लुकोया? कहंदे लुकोया तां अखां दे हंझू लुको के लै गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज। अखां दे हंझू लुको लए, हंझू सानू वेखण नहीं दिते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हंझू नज़र नहीं आए सानू। कहंदे होर जिन्ने भी वड्डे वड्डे पीर लोक औलीए सब इस दुनिया तो रोंदे गए ने। कहंदे सहंसर दान दे इंद्र रवाया, परशुराम रोवे कर आया। कहंदे वड्डे वड्डे लोकां ने जिहड़ा अपने आप नूं वड्डा मनदा सी ना, इंद्र देवतियां दा राजा, ਉਹਨੂੰ भी रोना पै गया।
परशुराम रोवे घर आया। परशुराम कहते इनू परमात्मा दे वल्लों वारस सी कि ये मरे हुए बंदे नू जिउंदा कर सकदा सी। एक बार ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ युद्ध होया तो उस युद्ध दे विच इहदा पिता मारिया गया, जमदगन। ਜਦੋਂ पिता मारिया गया तो उन्ने चिर नूं इहदी जिहड़ी शक्ति सी वो समाप्त हो गई। तो परशुराम दे कोलों पिता अपना जिउंदा ना होया तो परशुराम नूं भी रोना पै गया। परशुराम रोवे घर आया। जंग के मैदान विचों जो पिता चढ़ाई कर गया, पिता मर गया जंग के मैदान च, परशुराम भी रोंदा घर आ गया सी। कहंदी वड्डे वड्डे लोग रोए, अजय सो रोवे भीखिया खाए। बड़ा दानी राजा सी कहंदे, अजय बड़ा दान करदा। एक बार कहंदे इहदे कोलों दान गलत हो गया, कोई साधु आया तो ये अग्यों अकिया बैठा सी। साधु ने भिक्षा मंगी तो इहने लिद चुक के घोड़ियां दी साधु नूं पा दित्ती ते साधु ने लिजा के कुटिया कोल रख दित्ती। कहंदे जिहड़ा असीं दान पुण्य करदे आं वो वधदा है, इस दुनिया ते भी वधदा है, अगे मालक दी दरगाह जाके भी वधदा है, उहदा फल सानूं मिलदा है। कहंदे वो जिहड़ी घोड़े दी लिद अजय राजे ने दित्ती, ये गल अजीब जी लगनी है पर गुरबाणी च सानूं मिलदी है। अजय सरोवे भीखिया खाए, इन्हें भिक्षा दे दित्ती लिद साधु नूं, वो वधदी गई तो अखीर इनूं वो खानी पई। फिर ये भी रोया, ऐसी दरगह मिले सजाए। कहंदे सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे राम निकाला पया। इत्थे जिहड़े अवतार लोग सी ना राम वर्गे, जदों उन्हां दे कोलों उहदा भरा लक्ष्मण विछड़ गया, जदों घर वाली सीता नूं चुक के रावण लै गया, कहंदे राम नूं भी रोना पै गया। रोवै राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवै दैसर लंक गवाए, जिन सीता आदि डौरू वाए। बड़े बड़े लोकां नूं रोना पिया, असीं तां गुरमुखो फिर की है, साडी की बात है जदों एडे बड़े बड़े लोग रो सकते। कहंदे एक राजा उहनूं किसी वैद ने दस दिता। वैद आया, वो अगे भी उस वैद तो इलाज करवाउंदा सी। जदों बीमार होना, कोई माड़ा मोटा बीमार होना तो उस वैद कोलों जड़ी बूटियां लै लैनियां, दवाई लै लैनी। हुण वो वैद नूं पुछदा, कहण लग्या वैद जी कोई अपने इलाके च कोई इहो जिहा जोतसी होवे जिहड़ा जोतिष ला के दस देवे मौत कदों होनी है, मौत कदों होनी कोई दसन वाला मिल जाए। उस वैद ने आखिया, कहन लगिया जी जोतसी तो है, उन्होंने आपां बुला लैंदे। कहंदे जोतसी बुलाया तो राजा उन्होंने पुछदा है, कहन लग्या भी जोतसी साहब जोतिष ला के दस्यो भी मेरे ते मौत कदों आएगी, मैं मरना कदों आ। वो कहंदा राजन मेरे नाल एक प्रॉमिस कर लो, एक वादा कर लो, पहला शर्त ला लो कि मैं तुहानूं ये दस देवांगा भी मौत कदों आउणी है, ये भी दस देना भी मौत होनी किवें आ, पर मेरे कोलों मौत का इलाज ना जे पुछियो, वो मेरे कोले नहीं है। मौत दस देवांगा, किवें होनी ये भी दस देवांगा जोत सला के, पर यह ना मेरे कोलों पुछियो कि इस मौत तो बचण का इलाज की है, ये नहीं मेरे कोले है। राजा कहंदा मौत तो बच तां मैं आपे ही जावांगा, मैनू ये दस दिओ कि मौत आएगी कदों ते किवें आएगी। दस दिता जी एक साल नूं पुन्नियां दा दिन आउणा फलाने महीने, जदों पुन्नियां दा दिन लंघ जाएगा ना
ਤੇ उस वेले तुहाडे सप लड़ के फिर मौत होनी है। राजा कहंदा जी ठीक है, तुहाडा धन्नवाद, मैनूं दस दिता है, हुण बचन का प्रबंध मैं आप ही कर लेना। एक साल नूं पुन्नियां दा दिन आउणा है ते उस दिन पुन्नियां दी रात, माफ करो, पुन्नियां दी रात नूं सप लड़ना है ते मौत हो जानी है। कहन लग्या दिन बहुत ने, एक साल मैं प्रबंध कर लूँ, कोई गल नहीं, तकड़े प्रबंध कर लेने, मैं पुख्ता प्रबंध करांगा, मौत मेरे नेड़े नहीं आएगी। सप नाल मरना है, सप तो नेड़े भी नहीं आना मेरे। उस राजे ने कहंदे अपने महलों के अंदर एक बहुत तकड़ा ते वधिया लोहे का मजबूत कमरा तैयार करवाया। कंधां दे अंदरले पासे मोटियां मोटियां लोहे दीयां चादरां लवा दित्तियां भी मिट्टी तां उहदे बेजदी तां सप लंघ आएगा, लोहे दीयां चादरां पाड़ के थोड़ी लंघेगा। सारा प्रबंध एक साल प्रबंध करदा रहा, हर पासे तो बहुत सख्त पहरा ला दिता, दरबारची ला लए, नौकर चाकर सारे खिलार दिते भी किसी पासियों कोई कीड़ा भी अंदर लंघ के ना आवे, सप तां दूर दी गल है। समा लंघदा गया, इन्हें सारे प्रबंध पक्के कर लए मौत तो बचण दे, पर इधर बापू का भी हुक्म है कि मौत एक अटल सच्चाई है। कहंदे सच की है मौत, झूठ की है जिउणा, जिउणा झूठ है ते मरना सच है। मौत आके रहिंदी है, मौत तो अज तक कोई नहीं बचिया, पर राजे ने प्रबंध बड़े तकड़े कीते है। दसिया भी पहला गया भी मौत कदों हो जानी है, सप लड़ के मौत होनी है। सारे प्रबंध कीते होए आ ते पुन्नियां दी ओ रात आ गई। अज राजे नूं रोटी स्वाद ना लगे, फिकर पिया भी किसे पास्यों सप ना आ जाए। अज वो रात आ गई जिहड़ी रात ज्योतिषी ने दसी सी, अज वो रात आ गई। हुण चार सफेरे निगाह ही घुमाई जाता भी किसी पासों सप ना आ जाए। प्रबंध बड़ा तकड़ा है, भावें लोहे दियां मोटियां मोटियां चादरां दा कमरा तैयार किया है, बड़े पहरे लगे ने, नौकर चाकर सारे पहरियां ते खड़ाए हुए ने, ते फिर भी इहदी निगाह नहीं अज टिकदी। चार सफेरे देखदा भी कितों आ ना जाए। अज शामां हो गईयां, पुन्नियां दी रात शुरू होई, तो जिहड़ा प्रशादा तैयार करने वाला रसोईया सी वो प्रशादा तैयार करके तो लियाया, पर राजे दे लंघे ना। इन्ना वड्डा मौत का डर होंदा है, हर बंदा मौत तो डरदा है। असीं कहने फलाना बंदा लाइट तो बड़ा डरदा है, फलाना अग तो डरदा है, फलाना सप तो डरदा है। दुनिया की कोई शै नहीं जिहड़ी बंदे नूं डरावे, कली मौत डराउंदी। सप तो भी तां डरदा भी डंग मारेगा मौत हो जानी, बिजली तो तां डरदा भी जो करंट लग गया तो मौत हो जानी, अग च मचांगे तो तां भी तां डरदा कि मौत हो जानी है। हर चीज़ कारण मौत ही बनदी, मौत तो डरदा है। हुण राजे ने प्रबंध कीते होए आ, रोटी चंगी नहीं लगदी। कहंदे पुन्नियां दी रात अद्धियों ज़्यादा लंघ गई, 12 का टाइम सी वो भी लंघ गया, 1 लंघ गया, 2 लंघ गए, हुण सवेरा हो गया, दिन चढ़ना। उस तो बाद अमृत वेला हो गया। जदों अमृत वेला होया ते जिहड़े वैद ने ज्योतिषी सद्या सी, उस वैद दा राजे दे नाल अत दा स्नेह, बड़ा प्यार सी उहदे नाल। वो वैद अज सवेरे उठिया, कहन लग्या राजे ने रात मरना सी ते मैनू खबर मिल जानी सी जे मरिया हुंदा। राजा मरिया नहीं, मैनू तां खबर नहीं मिली। राजा अज अमर हो गया, राजे ने अज मौत जित लई। किन्ने प्रबंध कीते,
सप अंदर गया नहीं होना तो राजा मरिया नहीं, तां मैनू सुनेहा नहीं मिलिया। तो इनू चैन ना आवे, इहदे मन च आया भी मेरा इन्ना प्रेम है राजे नाल, सब तो पहला अमर होण दी, मौत तो बचण दी वधाई राजे नू मैं देवां। ये वैद अपने घर तो उठिया, इन्हें आदे अज इशनान पानी भी ना करिया, भी सब तो पहला राजे दे महलों च मैं जावां, मैं वधाई देवां। जदों आपां किसी नूं वधाई देण जाने आ, कुछ ना कुछ तो लैके जाने आ, कोई मिठा जां कोई खाण पीण जां कोई उहनूं गिफ्ट दिंने आ, पर इनू कुछ ना सुझिया। ये उठ के ते राजे दे महिला वल नूं भज पिया भी मैं जाके वधाई देवां भी राजा जी तुसी अमर हो गए, तुसी मौत जित लई, हुण तुहाडे ते मौत नहीं आएगी। जदों ये भजिया जांदा राजे दे महिला दे नेड़े गया ते मत्था ठणक गया, मना राजे नूं वधाई देण चलिया, कुछ लैके जाना सी, खाली हाथी तुर पिया। इनू होर तां कुछ ना दिसिया, राजे दे महिला दे मूहरे ना इनू फुल्लां दे गुलदस्ते नज़र आए। इन्हें आख्या हुण इस वेले हनेरा है, अमृत वेला, इस वेले की लैके आवांगा, राजे नूं फुल ही भेटा कर दिंदे आ। इन्हें थोड़े जे फुल समेत डंडियां तोड़ के ते एक गुलदस्ता बना लिया थल्लों बन के, भी गुलदस्ता भेंट करांगे। जदों कहंदे वधिया वधिया फुल इन्हें तोड़ के गुलदस्ता बना के ते महिला च गया, ते ये राजे दा कह लो वैद भी सी, गुरु भी सी। इनू किने रोकना सी? किसे दरबारची ने नहीं रोकिया, किसे पहरेदार ने वैद नूं ना रोकिया। कहन लग्या मैं छेती जाके राजे नूं अमर होण दी वधाई देनी। इन्हें जा राजे नूं मिलिया, कहन लग्या राजे राजन तुहानूं वधाई होवे, तुसी अमर हो गए आ, मौत तुहानूं जित नहीं सकी, तुसी मौत नूं जित लिया। ते ये कह के ते इन्हें राजे दे हाथ च वो फुल्लां दा गुलदस्ता फड़ा दिता। ते राजे ने वो फुल्लां दा गुलदस्ता जदों मूँह ना लाया, सुंघण लग्या, नक ना लाया, ते कहंदे फुल दे विच छोटा जिहा तक्षक नाग, बड़ा छोटा हुंदा है सप, जिन्हों तक्षक नाग कहंदे आ। कहंदे निक्का जिहा जीव हुंदा है, वो फुल च बैठा सी ते उहदे च जहर इन्नी हुंदी आ, डंग मारदी बंदे नूं पानी नहीं पीण दिंदा। जदों राजे ने वो फुल सुगंधी लैण वास्ते, सुंघण वास्ते नक दे नेड़े कीता, ते उस नाग ने, तक्षक नाग ने नक ते डंग मारिया, ते राजा नाल ही मुरछा के डिग पिया, मौत हो गई। इस करके मौत तो कोई बच नहीं सकता, इस मौत ने सारियां नूं ग्रसना है, ये मौत वाला दिन सारियां ते आउणा है। इस करके मौत दे नाल सौखियां जाण वास्ते तैयारी जरूरी है। तैयारी यही है सत संगत, चंगे काम, गुरु की संगत और बाणी पढ़िए, नाम जपीए। जे अज असी माता बलविंदर कौर जी की याद विच उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हैं, उन्हां दी मौत नूं चेते करके अपनी मौत नूं चेते करना भी जिहड़ा दिन माता ते आया है वो दिन साडे ते भी आउणा है। हाँ दुख हुंदा है, मैं पहला भी बेनती कीती है, जिस बंदे दी माँ चली जाए उहदा तां जहान ही सुन्ना हो जाता सारा। माँ उहदे वास्ते घर दियां रौनकां हुंदियां। माफ़ करियो जे घर वाली पानी का गिलास पुछे ना पुछे, पर माता पुछ लैंदी है। पुत विदेश चलिया जाए सारी कोई कुछ पुछदा है, कोई कुछ पुछदा है भी माहौल किदां दा, सड़कां किदां दियां, माहौल भाव इत्थों दा मौसम किदां दा है, कामकार किदां दा, सारे ही पुछ लैंदे आ। पर माँ ये पुछदी है पुत जिथे तू रहिना कमरा किदां दा है, ठीक रहना है, सौण नूं जगह ठीक है, समय सिर रोटी खा लेना है, तैनूं खाण पीण समय सिर मिल जाता। ये केवल माँ पुछदी है। घर दे विच गरीबी होवे, एक डंग दी रोटी खाण नूं ना मिले, तो केवल माँ ही कहंदी हुंदी है कि पुत तू खा लै, मैनूं अज भुख नहीं, माँ कहंदी हुंदी है। माँ दा दुख बड़ा वड्डा हुंदा है। मावां नूं एवें नहीं विद्वान लोगों ने ठंडियां छावां आखियां, पुत्तां वास्ते ये ठंडियां छावां ही हुंदियां।
माँ जो किते पुत बाहरों आवे अपनी छाती नाल पुत नूं ला ले तो सीना ठर जाता है। माँ का भी पुत का भी इन्ना प्यार करती है। पुत लखां गलतियां कर लवे माँ सारियां ही भुला दिंदी है। जिहड़ा प्यो हुंदा है वो भी अपने पुत्रां धीआं नूं प्यार सुख नाल बथेरा करदे हुंदे ने, पर माँ जिन्ना नहीं। प्यो प्यार तो करदा है पर माँ जिन्ना प्यार नहीं कर सकता। सब तो वध जे प्यार करदी है तो माँ ही करदी है। तो जिहदी माँ तुर जाए उहदे वास्ते जहान सुन्ना हो जाता है। इस करके आपां सारे तां आए हैं कि परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते। परिवार ते बहुत बड़ा ये दुख टुटिया आण के ते असी परिवार का दुख घटाउण वास्ते दुख की घड़ी च शरीक होने वास्ते परिवार के कोल आए हैं। तो गुरु पातशाह महाराज जी के चरणों च असी सारिਆਂ ने रल मिल के अरदास करनी है। महाराज साडी माता बलविंदर कौर साडे कोलों विछड़ गई है, किरपा करियो जे साडी मां नूं अपने चरणों च निवास बख्शियो, पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शियो। ये अरदास मैं कल्ले ने नहीं, आपां सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु पातशाह के चरणों च ये अरदास करनी है। सबना का धन्नवाद जिन्हों ने एकाग्रता बना करके गुरमत विचारों की साझ नूं सरवण किया है। दास तो एक नहीं अनेकां भुल्लां होईयां होणीआं, गुरु और गुरु जी की संगत बख्शण योग है। सबना ने रल मिल के आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां पढ़नियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।